Now we are going to see the exercise questions of chapter trigonometry. In previous lecture we have already completed all the concepts which are required to complete this exercise, or all the four exercise of chapter number 8, trigonometric ratios and identities. Now we are going to see some questions which are really important. I will discuss, and I will also discuss some hint which you have to do as your homework. Okay, so आइए start करते हैं exercise 8.1 क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन है बेटा, पार्ट्स अलग अलग हैं, कोई भी क्वेश्चन एक देख लेते हैं। मैं फर्स्ट का सेकंड पार्ट बता रहा हूँ, राइट, जिसमें कि आपको गिवन है ए बी 12, ए बी 12 दिया हुआ है कि एक ट्रायंगल में, है ना। बी कंडीशन ये दिया है कि इफ इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और एंगल बी पे राइट एंगल है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी एंड टेन ए। ओके, सो वी आर गिवन विथ ए बी इक्वल्स टू 12, बी सी इक्वल्स टू 5, bc equals to 5, and ac equals to 30, right? So these are length, suppose these are length, right? Until and unless this is not a ratio, these are the length of the sides of a triangle. Okay, and we have to find what, we have to find sin a cos c and tan a. But first let me tell you, we need to draw a diagram. Right angle triangle we need to draw, so I have drawn it. So this is a, b and c. p मैंने यहीं पर क्यों लिखा, क्योंकि it is given in the question that it is right angle at b. Okay, now what we have to do, we first we need to find sin a. So I know the formula p b p अपॉन एच एच बी, जो कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में, तो इसलिए बोल रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर से पहले आप जाकर उसको देखें फिर से, ताकि आपको रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो पी वी पी अपॉन एच एच बी। ओके, सो इफ आई से साइन ए, what I have to find sin a, but first it is given AB is 12, BC is 5, and AC is 13. Okay, so each and every side of this triangle is given. We need to just find the ratios. So sin A, what will be the value? Sin A की value जो होगी, that should be P upon H, right? पहला वाला जो होता है वो sin के लिए होता है. So P upon H. So for A, sin A, right? यहाँ पर अगर मैं A की बात करूं तो यहाँ पे जब sin A बोला, इसका मतलब थीटा यहाँ पर है, ठीक है। सो sin A में थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, दिस विल रिमेन ऑलवेज एज हाइपोटेनस, एंड दिस विल बी बेस। समझ में आया? आपको बस एक चीज याद रखना, हाइपोटेनस आपको पता है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, जो रिमेनिंग साइड है दैट इज बेस। सो p अपॉन h, नाउ p is what 5 and h is what 13, so this is the answer. Now if you have to find cos c, so cos c के लिए थीटा जो है बेटा, जो अभी तक यहाँ पर था, now we have to shift it on c. Now keep this theta here and tell me what is the formula of cos. So cos का जो formula है that is b upon h, b upon h. Now as we have changed the position of theta, so the condition will also change. This will again remain as hypotenuse, but theta के सामने वाला perpendicular मैंने बोला, तो now this will become perpendicular, and third जो remaining है वो base. Now base is what for cos c 5, and h is what 13, so this is the answer. And similarly for 10, 10a, again we need to go to change the sign of the or position of the theta, again 10. For 10, what is the formula? P upon b, right? Again I am saying, if you are not getting it, go and watch my first lecture on trigonometry, then you will come to know what I am applying. Okay, don't see these lectures directly, you will not get it. Okay, so p upon b 10a. So now again the condition will get changed, and it will be again same as the first one, a. Okay, so this will hypotenuse theta के सामने वाला perpendicular, and this will be base. So p upon b, that is 5 upon 12. So these
are the values we have to find. We have already find it. ओके सो जैसे जैसे ए बोला है तो ए पे थीटा रख दो, उसके साथ कंडीशन बदल के उसको पुट कर देना. जैसे सी बोला है तो सी के साथ रख के कंडीशन रख के पुट कर देना. रेस्ट everything is same. So exercise 8.1 is completed and you have to do it as your homework. Okay, it's not necessary that you have to submit it today only, but as soon as possible you can submit it. Okay, now let's come to the exercise second, where I have to discuss some questions which are really important for your exam point of view and also for your concept point of view. So now for exercise 8.2, I am moving little bit faster as we have to complete the course in time. Okay, with covering all the concepts also. So exercise 8.2, we have question number 1 and it is given one of the trigonometric ratio is given below. So suppose if I've taken first, that is given tan theta equals to 3 by 4. Now we know the formula P B P upon HHB, and third condition is for tan. So we know P upon B is given, right? P upon B is given. It means if I say there is a triangle which is right angle, since this condition is only applicable for right angle triangle, so it is not given कि वो कितने किस पर right angle है. So I am considering the same situation and putting theta here. Now tell me, थीटा वाले सामने वाला साइड जो होगा वो p होगा, ये हमेशा h होगा. This will remain as b. So it is given that p is what? P is 3, right? And b is 4, right? Since it is the ratio, it means again I am saying that ratio is the simplified form. It means some multiplication should be there where it has cancelled out and the ratio has become 3 by 4. But again I am saying if it is given 3 4 and if you are assuming as k, so this will become 5 according to Pythagoras. Since it is not given, so we can find it by using Pythagoras. You have to write it as a formality. I am applying it directly. Okay, so bc square, ac square is 5, ac square you have to find it, ab square it is given, that is 3 k square 9, pc square it is given, that is 16. So this will be 25 and AC equals to under root 25, that is 5. So again ये तो पाइथागोरल ट्रिपलेट्स जो हम 8th क्लास में भी पढ़े हैं वो चीज मिल गया है. 3 4 तो तीसरा वाला 5 ही होगा. ठीक है, ये मिल गया आपको और कुछ नहीं चाहिए. बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालने हैं आपको. सो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, गो फॉर साइन थीटा. साइन थीटा का फॉर्मूला p अपॉन h होता है. वॉच what is p and what is h. So for this theta only, now you don't have to change the position of the theta. For p this is 3 and h is 5. Again for cos theta, that is b upon h. So this is b is what, 4 and h is 5. Now 10 it is given and you can say अगर 10 दिया है तो cot theta क्या होता है, 1 by 10 होता है, 10 theta. So this 3 by 4 will become 4 by 3. And similarly sin अगर मिल गया तो cosec निकालने के लिए you need to find 1 by sin theta only. And now this will get reciprocal, 5 by 3 will be the answer. And cos theta sec theta होता है, sec theta निकालना है तो 1 by cos theta, and cos theta is 4 by 5, so it will be 5 by 4. And we have completed all the trigonometric ratios. In the same way we have to do all the questions. Okay, इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर यह है बेटा कि यहाँ पर थीटा का पोजीशन चेंज नहीं हुआ है. सो दैट मेक्स दिस क्वेश्चंस मच इजियर एज कंपेयर टू अर्लियर वन फॉर एक्सरसाइज 8.1. Okay, one of the important part is sixth part. It is given sec beta equals to 2. Okay, so you do not have to worry about it since the ratio is not given, so you have to assume it as 2 upon 1. And beta, instead of beta you can use theta also. just आपको डराने के लिए बीटा दे दिया है. इंस्टेड ऑफ यूजिंग बीटा यू कैन यूज थीटा. बट अगर बीटा क्वेश्चन में दे दिया तो आप बीटा दिखाएं ताकि एग्जामिनर कंफ्यूज ना हो. बाकी रेस्ट ऑपरेशन इज सेम. सेक बीटा बोला गया है. सेक व्हाट इज सेक, पी अपॉन पी बी पी एच एच बी,
राइट। बी अपॉन एच होता है कॉस के लिए, तो सेक के लिए क्या हो जाता है, सेक के लिए आपका हो जाएगा एच अपॉन बी। एच आपको दे दिया है कितना 2, बी कितना दे दिया, अगर थीटा में यहाँ पर एज्यूम करूं, चलो यहाँ पर देख लो, अगर ये एच है और थीटा में यहाँ एज्यूम करूं तो बी ये बन जाएगा, तो बी क्या दे दिया है 1, और यहाँ से आप ये निकाल लेना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, गॉट इट। और यहाँ से ए सी स्क्वायर 2 के स्क्वायर 4, ए बी स्क्वायर दैट इज वी हैव टू फाइंड, एंड बी सी स्क्वायर इज 1, 1 विल शिफ्ट दैट साइड, ए बी की वैल्यू √3, जैसे ही आपकी √3 आई अब सभी चीज आप निकाल सकते हो बेटा। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट। नाउ दिस इज सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 7 ऑल्सो, आपको दे दिया कोसेक ए √10, तो √10 को वैसे ही रहने दो, √10 upon 1, again use the Pythagoras theorem, find the side which is not given, whenever you will get the all the three sides, what you have to do, you have to just use the formula PBP upon HHB, पाकिस्तान भूखा प्यासा upon हिंदुस्तान हरा भरा, या फिर आप बोल सकते हैं पड़ोसी भूखा प्यासा upon हिंदुस्तान हम हरे भरे, नॉट हिंदुस्तान हम हरे भरे, पड़ोसी भूखा प्यासा और हम हरे भरे। ओके, so this was the concept for exercise 8.2 question number 1. Now we are moving for question number 2, and in question number 2 it is given, just check it, uh, cot theta equals to 21/20, and we have to find the value of sin theta into cos theta, right? So what we need to do is, we have to first find the value of sine and cos, and then we have to put it. So cot theta is what? We know tan theta equals to P upon B. You can use P upon A. Yes, same formula. तो cot क्या बन जाएगा? Cot theta will be B upon P. इसका मतलब B दिया हुआ है 21, P दिया हुआ है 20, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने यूज किया ABC। ओके, थीटा अगर मैं यहाँ पर एज्यूम करता हूँ, सो दिस विल बी कॉट थीटा इज 21, ये दिया हुआ है ना हमें 21/20, राइट? सो बी इज 21, सो बी इज दिस, p is 20, now we can find the hypotenuse, ac square equals to ab square plus bc square, and what you will get, AB it is given 20 का square 400, and 21 का square you can find it, so this will be 1 2 2 4, this will be 441, right? So this will be 441 AC square, and this will be 841. So 841 किसका अंडर रूट होता है, you can check it, you can find the value of AC, whenever you will get AC just find sin theta and cos theta, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में किए थे, एंड पुट द वैल्यू, मल्टीप्लाई इट, यू विल गेट द आंसर। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बताना चाहिए आपको, सो क्वेश्चन नंबर एक बार थर्ड भी देख लेते हैं। कॉस ए दे दिया है, चलिए यहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, और है ना, कॉस ए दे दिया है आपको, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ए माइनस साइन ए इक्वल्स टू upon I'm sorry upon 2 tan a. Now we know that this is b upon sun bhuka the sun p upon h. Okay, so again we are making the triangle, this is suppose this is a, this is b and c, and cos a is given, इसका मतलब थीटा यहाँ पर है, cos की वैल्यू b अपॉन h होता है, तो थीटा जब यहाँ है तो थीटा के सामने वाला h हमें 5 दिया हुआ है, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर है, तो वी नीड टू फाइंड इट, एंड b जो है वो 4 हो गया, ये है ना, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करेंगे तो आपको मिलेगा 3, कैसे मिलेगा, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, आप खुद करेंगे। उसके बाद नाउ वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए, तो साइन ए क्या होता है बेटा, p अपॉन एच होता है, p की वैल्यू आपको क्या मिल गई 3, h की वैल्यू 5 मिल गई। सिमिलरली आपको tan a की वैल्यू क्या मिल जाएगी बेटा, tan इक्वल्स टू p अपॉन b, p क्या हो गया 3, b क्या हो गया 4, एंड सिमिलरली अगर tan a मिल गया तो cot a भी मिल जाएगा, जस्ट रेसिप्रोकेट इट एंड जस्ट पुट द वैल्यू, cot a की वैल्यू आपको क्या मिली है 4/3, तो यू हैव मेंशन देयर, देन sin a की वैल्यू आपको क्या मिली है 3/5, सिमिलरली
2 इंटू 10 a की वैल्यू क्या मिली है 3/4, 2 से 2 गया, ऊपर एलसीएम होगा 15, राइट। 3 5 जा एंड 5 4 जा 20, सिमिलरली 5 3 जा एंड 3 3 जा 9, you know how to you know take LCM, and this will be 3 by 2. After that this will be 11 upon 15 upon 3 upon 2, ये मल्टीप्लाई होंगे 22 upon 30, so आंसर विल बी 22 upon 30। तो आई होप आपका क्वेश्चन नंबर फोर्थ फिफ्थ इसी तरीके से होंगे। जस्ट यू नीड टू फाइंड ऑल द साइड्स फर्स्ट एंड देन find the trigonometric ratios which value we have to find and put the value in the question। ठीक है, तो मैं ये नहीं बता रहा हूँ बेटा सभी के सभी सेम है, एकदम एग्जैक्ट है, अगर डाउट है तो पूछ लेना, लेकिन सभी के सभी सेम है। आपको तीनों ट्रायंगल के तीनों के साइड को निकालो और जस्ट पुट द वैल्यू देयर। ओके, ठीक है। नाउ नाउ बेटा आई एम कवरिंग एक्सरसाइज 8.3। ओके, आपको डाउट होगा आप पूछ लेना बेटा, आपको डाउट होगा आप पूछ लेना, है ना। कॉन्सेप्ट आप एक बार पढ़ लिए तो इस चैप्टर में कुछ नहीं है, इसलिए मैं पूरा पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूँ एक लेक्चर में, और सेकंड में जितना हम कवर कर पाए क्वेश्चंस उतना कवर करने की कोशिश करते हैं। तो एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 1 अगर मैं देखूं तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बोला गया है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। नाउ you should know the table which I have discussed in lecture number 1, so we know tan 45 equals to 1, you can check it, so 1 is given and just put the value tan 45 की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1, क्योंकि स्क्वायर है 10 का स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिया, अगेन 1 प्लस 1 का स्क्वायर। Now when you will see 1 minus 1 का square will remain 1 and 1 plus 1, so 0 upon 2 answer will be 0, so correct answer is 0। Similarly when you will go for a second portion, so this will be 2 tan 30 degree upon 1 minus tan square 30 डिग्री। ओके, वी नो टू टेन थर्टी की वैल्यू क्या होती है, टेन थर्टी की वैल्यू होती है बेटा 1/√3, सिमिलरली 1 माइनस 1/√3, लेकिन इसमें स्क्वायर है नीचे तो स्क्वायर लगा देंगे। नाउ व्हेन यू विल सॉल्व इट व्हाट यू विल गेट 1 माइनस 1/3, टेक द एलसीएम, राइट, 3 minus 1 upon 3, this will be 2 into 3, this will be 2 root 3, 2 से 2 cancel, 3/√3, when you will reciprocate it क्योंकि नीचे रूट नहीं आना चाहिए तो √3 से मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट √3 अपॉन 3, 3 3 कैंसल, आंसर विल बी √3। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको पता है क्या, रेसिप्रोकल वाला बेटा, कि नीचे कभी भी रूट वाला टर्म आए तो जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, यानी उसी नंबर से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो तो नीचे वाला टर्म रेसी मतलब रूट के अंदर नहीं आता। ठीक है, तो ये हो गया। तो वैसे ही आप सेकंड एक्सरसाइज में cos 30 क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट में आप देखो cos 30 की वैल्यू इनटू cos 45 कुछ नहीं है इन्हें यानी इनटू, है ना, माइनस sin 30 देन sin 45, थोड़ा सा वीडियो फास्ट हो रहा है बट यू हैव टू मैनेज इट एज यू नो द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ईच एंड एवरी डिटेल, यू नो। cos 30 की वैल्यू क्या होगा बेटा √3/2, राइट, cos 45 1/√2, sin 30 1/2, sin 45 1/√2। तो आपको इतना मेहनत कर लेना है कि आपको याद करने टेबल बनाने की जरूरत ना पड़े, ऐसे डायरेक्ट मेरी तरह लिखते चले, ठीक है। एंड दैट कम्स बाय प्रैक्टिस, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना याद रहेगा, ठीक है। सो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो √3 इंटू 1 √3, 2 अपॉन √2 2 √2, and this will be 1 into 1 1 2 √2, when you will take the LCM will remain as 2 √2 since ये और ये दोनों सेम है, एंड ऊपर जो आएगा 3 minus 1। now it is up to you whether you want to rationalize it or not, or you can leave it up to here only, so this will be your complete answer। similarly you can manage all the questions, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको ट्रू फॉल्स करना है, यानी एलएचएस में वैल्यू जो दी है उसको पुट कर लो, आरएचएस में जो दी है उसको पुट कर लो और देखो कि एलएचएस आरएचएस के बराबर हुआ तो ट्रू होगा, अदरवाइज फॉल्स होगा. सो दैट वाज द condition. So today I am in mood of completing this whole chapter. Okay, and you will get around 5 days to complete all the chapter exercises questions. So I am discussing here exercise 8.4. All questions are easy, that's why I am discussing it. You can go through this lecture several times. If you are not getting it, you can go it. That's why I am not taking live classes. Instead of that, I am taking the recorded classes so that you can refer these videos regularly or continuously. Okay, if you have any doubt you can ask to me personally. Okay, so in exercise 8.4 we have to solve it. यानी पहले में हमें दे दिया sin थीटा इक्वल्स टू cos थीटा. ओके, ये हमें दे दिया है. अब मुझे बताओ, आपसे अगर मैं कहूँ कि ये x इक्वल्स टू, अगर मैं कहूँ कि यहाँ पर 4 into 2 है ना, तो ये 4 कैसे गया होगा वहां पर, या फिर ये 2 कहाँ से गया होगा? ऐसा होगा तब ना, 4 ऐसा होगा तभी ना हम लोग इसको नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तभी ये x हो जाता है x into 1 x और 4 into 2 लिखाता है. तो इसका मतलब ये 2 नीचे भी आ सकता है. ठीक है, वैसे ही अगर मैं कहूँ कि x इक्वल्स टू 4 को मुझे नीचे लाना हो, क्या करना हो, इस 4 को मुझे x के डिनोमिनेटर में लाना हो, तो मैं क्या करूंगा, x/4 और ये 1, ताकि 4 से मल्टीप्लाई 1 होगा तो ये ऊपर ही आ जाए. देखो इन दोनों में कोई फर्क नहीं है. व्हेन यू विल सॉल्व इट यू विल गेट द अबव इक्वेशन. तो अगर मैं कहूँ कि साइन थीटा है और नीचे उसके मैं कॉस थीटा ये वाला ला दूं, तो इसका मतलब 1 आ जाएगा. या फिर आप कह सकते हो डिवाइड डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस थीटा. सिंपल, दोनों में से कोई भी कर सकते हो, बात वही रहेगी. अब साइन थीटा अपन कॉस थीटा आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इज टेन थीटा और 1. अब टेन थीटा की वैल्यू बेटा कब 1 होती है, टेन थीटा की वैल्यू बेटा कब 1 होती है, 1 को हम लिख सकते हैं ना 1045. इसका मतलब जब कंपेयर करोगे तो 10 इधर भी है 10 इधर भी है, कट नहीं करोगे, सिंपल लिख दोगे कि थीटा की वैल्यू क्या हो गई 45 डिग्री. सो सॉल्यूशन मतलब अननोन क्वांटिटी, अननोन क्वांटिटी मतलब जो थीटा है उसकी वैल्यू हमें से यहाँ पर निकालनी है. सो आई होप आपको ये समझ में आया. नहीं आया तो दूसरा क्वेश्चन देखो. दूसरा क्वेश्चन देखो, देखो 2 cos थीटा इक्वल्स टू 1. अब यहाँ पे क्या करना है, आपको cos थीटा की वैल्यू निकालनी है. उसके लिए आपको क्या करना होगा, 2 डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड बोथ साइड बाय 2. क्या वो लिखूंगा, डिवाइड बोथ साइड बाय 2. ओके, बाय 2. सो यहाँ पे क्या बचेगा, cos थीटा और यहाँ पे हो गया 1/2. अब मुझे बताओ cos थीटा तो इधर है, लेकिन 1/2 कब आता है cos थीटा के फॉर्म में, तो cos 60 डिग्री आता है कि नहीं. अब आप देख सकते हो cos थीटा की वैल्यू cos 60 डिग्री, यानी थीटा की जगह पे क्या है, आप देख सकते हो थीटा की जगह पे 60 है, यानी थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, तभी ना इक्वल होंगे. सो दैट वाज द आंसर. अगेन एक और क्वेश्चन बताता हूँ बेटा, है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं है. क्वेश्चन नंबर थर्ड समझते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड में 2 sin square theta equals to 1/2. वॉच इट केयरफुली, 2 नीचे जाएगा, यू हैव टू डिवाइड इट बाय 2, तो sin स्क्वायर थीटा जब डिवाइड करोगे तो 1/4 हो गया. अब मेरे को एक बात बताओ बेटा, sin स्क्वायर थीटा 1/4 है, तो sin थीटा यानी स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बन जाएगा 1/4. इसका मतलब sin थीटा क्या बन जाएगा, 1/2 बन जाएगा. तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 कब आती है, जब साइन 30 होता है, तो इसका मतलब थीटा क्या हो जाएगा 30 डिग्री. दिस विल बी योर आंसर. सो इजी है. ठीक है, तो बाकी क्वेश्चंस आप करोगे बेटा, इसमें कोई भी चीज टफ नहीं है. एक नाइन्थ वाला भी देख लेते हैं. इसमें क्या बोला गया, 4 साइन स्क्वायर थीटा -3. ये तो जैसे जैसे इस चैप्टर में आगे बढ़ते जा रहे हो ये बहुत इजी होते जा रहा है. अब देखो ये देखो, -3 को पहले उधर शिफ्ट करो, फिर 4 से डिवाइड करो, मतलब ये क्वेश्चन अब बन गया थर्ड की तरह या फिर फर्स्ट की तरह. साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया 3/4. नाउ साइन थीटा क्या हो जाएगा √3 और अपॉन √4 क्या हो जाएगा √3/2. नाउ टेल मी साइन थीटा √3/2 कब होता है, साइन कब 60 डिग्री.
नि थीटा की वैल्यू 60 डिग्री, खत्म। ठीक है, सो दिस वाज द अप्रोच फॉर ऑल द क्वेश्चंस। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? Okay, so this was the end for this chapter beta. Now what we have to do, we need to go for another chapter, that is straight lines and angles. जो जो मैं करा रहा हूँ that will only come in the exam. ठीक है, इस एग्जाम के लिए एक और चैप्टर नहीं है, इस एग्जाम में आपके यहीं तक आएगा ज्योमेट्री, सॉरी ट्रिग्नोमेट्री तक। बट क्योंकि हमारे पास, अगर मेरे पास 2-3 पीरियड्स मुझे मिल रहे हैं तो आई विल कंटिन्यू माय सिलेबस। ओके, और आपको मैं 2-3 दिन में मैं भेजते रहूंगा आपका रिवीजन क्वेश्चंस। ओके, सो सी यू। ओके।